very, very essential that an entity and organization which is capable, competent, and which has all the funds, resources, men, machinery to get the work done. And because of having worked in Bombay Corporation, I am fully aware that there are projects which BMC has already taken up for cleaning up Dahisar, Boisar, Meethi, and other lakes and ponds of Mumbai also. So I have already sent a proposal to the state of Maharashtra that the committee formation needs to be a little revised. It's not that collector doesn't have a role. Collectors have the role in terms of wherever coordination is required, calling some organizations which do not directly work under corporation, bringing people together for the mission. However, the resources and the entire concept work, because it lies with BMC, it technically would be better for more efficiency of the GR that it is with the BMC commissioner. So I have already sent a proposal in this regard. She is my member secretary for the committee. She is Sanjalak, as she told, in the Sanjay Gandhi National Park. 2 of our rivers flow from Sanjay Gandhi National Park. And it's a very, very important place in that regard. Even within Sanjay Gandhi National Park, the river cleanliness can be taken up. From my side, in case next meeting onwards or even today, if I get engaged with some other official work, Deputy Collector Mr. Vikas Gajre, as long as we are there as the chairperson, as the district collector, so he will always be my nodal officer. Then you can introduce. He's my district mining officer. Namaste. मी विवेक गुले, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, मुंबई उपनगर. Yes. I'm Colonel Umni Chandrasekhar, coordinator for Oshiwara. Oshiwara. निवडलेला वादे शिक्षण निरीक्षक चेअरमन. तुमचा मोठा रोल आहे. I'm Vijay Sel, sub-engineer, Arnott, BMC. Arnott. Very sir. मी नागनाथ प्रोविडे सब इंजिनियर आर सेंटर BMC. आर सेंट्रल सुद्धा दहीसर. बोरीवली. नहीं मतलब नदी प्रमाणे बोलते हैं. दहीसर जाते थे तो. Oh, yes. गुड मॉर्निंग मॅम. आसाम प्रणाली निगम ज्युनियर जिओलॉजिस्ट ग्राउंड वॉटर सर्व्हिस अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी. GSTA कडून. Yes, ma'am. हे तुमच्याकडेच होती ना. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट. My name is Ankita Surve, sub-engineer rainwater harvesting. Rainwater harvesting. Has BMC started implementing this rainwater harvesting in all the new projects? Yes, in BMC premises. Only BMC premises. You are not implementing in private projects wherever you are sanctioning new plan. No, not yet. I'm Pallavi Patel, sub-engineer, SW Construction Department for Dahisar River. Dahisar River you are looking at. Very good. Good morning, madam. Madam Dr. Hemant Nishad, Health Department, P North One Mala. P North Mara. Very good. Good morning, ma'am. I am Rajdeep Roy, representing TPF India Private Limited, consultant for Meethi River. And since how long you are consultant? We have been allotted the work order in the month of March This year. this year. This Meethi River thing has been happening since 2005. There have been multiple consultants for Yeah, exactly. But now It is your the recent. tender work, everything Yeah. is in place, everything? Tender Done. is in place. Ah. We have started work on that. Basically, there are 3 fronts which we'll have to look into. Our prime importance is flood mitigation Yes, and construction of holding ponds Yes. in Mumbai, yes. preferably near to Meethi. Mhm. And third is beautification. So Thank these are the 3 fronts we are working on. So basically, we have collected the data. You do not have sewerage treatment and all that element included in your job role? No, not No problem. Thank you. He is from my team. From your only. team. From- No problem. Which All of we are you. from- Good morning, madam. I am Gadewal, Haan, assistant engineer at Deputy Department. SWD. Dahisar River. Okay. Madam Nitin Sonar, Assistant Engineer Maintenance, R Central Ward. Okay. Good morning, madam. Myself Prashant Ramugade. I am looking after Meethi River project from BMC side. संदीप मोरे अवलकर LD ऑफिस मुंबई पश्चिम. नमस्ते मॅडम. मी गावकर अनिल शांतराव, सहाय्यक शिक्षक निरीक्षक चंबळ. Okay.
तुमचे मोठा रोल आहे. याच्यामध्ये अद्याप जनजागृतीबद्दलच सांगितलेलं आहे. तर जनजागृती म्हणजे मुलांच्या प्रभात फेऱ्या काढणे, त्यांची काही प्रतियोगिता वगैरे करणे. मुलांना सुद्धा प्रत्येक घरात माहिती झाली पाहिजे की नदीला स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. कल्पक मर्दे एई मेंटेनन्स आर्नोर्स वार्ड. Good morning, ma'am. Chandan Dongre, Assistant Engineer, Solid Waste Management, Pinoy. Good morning everyone. I'm Dr. Pravesh Shinde. I am coordinator for the Paisa. होय सर. Good morning ma'am. Myself Mohit Bhangaskar. I am from consultant side, Tender Urban Solutions Private Limited, and I am working on the Poisar, Oshiwara and Walbert river. होय सर. ओसिवारा Dahisar. All the four. All the four. गुड मॉर्निंग. मी उपप्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण. तुमचा सुद्धा मोठा रोल आहे. Good morning everyone. I am Jayant Hazare. I am Sub-Regional Officer MPC. MPCB. Good morning everybody. I work with MPCB in a very unique and different way. वो प्लास्टिक बैन इम्प्लीमेंट कर रहे थे तब MPCB के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे. Good morning. Myself Harish Pandey. I am the coordinator for Dahisar river. Dahisar. Coordinator for BMC. No. Okay. Citizen. Prahari, Jal Prahari. Jal Prahari. Yes. Very good. So now we can begin. Madam, we can make a presentation on Yeah. what this entire DR is all about. Yeah. Are we seeing this? Here. नदीमध्ये इथेच बसा. चालू राहिलं. नदीमध्ये काम आहे म्हणून मला जलनायक म्हणून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं रेकग्निशन आहे. सर्वात प्रथम अपना आज चला जाणूया नदीला ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले निधि चौधरी जी का बहुत बहुत तहे दिल से उनको करना चाहती हूँ, ग्रीट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस कार्यक्रम को लीड करने के लिए आज हम लोगों को मौका दिया, शायद मैं और कोई होता तो शायद कन्विंस नहीं कर पाती. ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है, क्योंकि जो आज का सत्यता है, आज का अगर ग्राउंड रियलिटी है, तो जो नदी का हम लोग नदी रिवर रिजुविनेशन का काम करने जा रहे हैं, तो नदी रिवर रिजुविनेशन का काम जो है वो ज़्यादा करके बीएमसी के अंडर होता है. और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे है हायरार्कियल में आप जानते ही हैं कि कलेक्टर और बीएमसी का कैसा हायरार्की होता है, और मुंबई का एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है. फिर भी हमने मैडम से रिक्वेस्ट करके आज मैडम ने इसको लीड करने के लिए हाँ कर दी है. प्लस गवर्नमेंट के पास लेटर भी गया है अमेंड करने के लिए, क्योंकि बीएमसी के कमिश्नर होने चाहिए मैडम के अनुसार कि वो इसके चेयरमैन होने चाहिए, ताकि हर चीज़ को हम जो भी काम कराना है रिवर रिजुविनेशन का तो हो पाए. तो ये मेरी सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये चीज़ को मैडम हम लोगों को बहुत बड़ा एक आशा देकर और इस चीज़ को शुरुआत करने का मौका मिला, जो हम वक्त पे कर पा रहे हैं. वक्त पे इसलिए अगर आप लोग अभी मैं आप लोगों का ध्यान बटाना चाहूँगी, 2 GR जो निकले हैं, एक 30 सितंबर को निकला है और एक 14 अक्टूबर को. अब 30 उसके ऊपर हमको ये समझना है कि उसकी गाइडलाइन क्या है. थोड़ा सा हम ये इसके साथ चलेंगे, हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ चलेंगे, ताकि हम ये भी समझ सकें कि हमारा सिनेरियो क्या है और हम क्या करना चाहते हैं. प्रवीण आगे बढ़ाने वाले हो ना. पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तौर पे हम लोग देखना भी चाहेंगे कि हमारी नदियां हैं कैसी, ताकि हम थोड़ा सा एक सिचुएशन बैकग्राउंड सिचुएशन दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे हम लोगों को काम क्या करना है. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो पहले जल पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके पहला जो उनका जो पोर्टफोलियो भी था वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही था, और उनके उस टाइम से दिए हुए पॉलिसीज़ आज अगर हम लोग उसको सही तरीके से पढ़ें और जानें, मेरे ख्याल से हमारे लिए मार्ग बहुत इजी हो जाता है कि हम किस तरह से ये नदियों का काम करेंगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इस जगह को भी नमन करना चाहिए जहाँ से सत्याग्रह शुरू हुई थी पानी की. ये जगह है अपना 14 महाड़ का, और इसीलिए मैंने आज ये पहली स्लाइड उसकी ही रखी है. और उसके बाद में हमने अपना एक लेटर रखा है जिसमें हमको जलनायक का जो रिकग्निशन दिया. नेक्स्ट ज़रा जल्दी लेंगे. नदी का कीप दैट. नदी को अगर हमको स्वच्छ करना है, क्योंकि जैसे अभी आपके सामने देख रहे हैं कंसल्टेंट्स बैठे हैं, और जब मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और जब बातें भी किया
जब हम रिवर रिजुविनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या एस्पेक्ट्स होनी चाहिए, उसको जानने के लिए हमको नदी का डेफिनेशन प्रॉपरली समझना और जानना बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये पहली स्लाइड हमने लगा दी है। और ये जो डेफिनेशन है ये मैंने नहीं बनाई है, ये एक हमारा नदी की परिभाषा जो बनी है, एक कन्वेंशन हुआ था 2011 में, और इसको राजेंद्र सिंह जी, जिनको कि आज माना जाता है कि वो पानी के गुरु हैं, और उन्हीं का दिया हुआ ये जो डेफिनेशन है, और हम सबके कंसल्टेशन में ये बना था। तो हिमजल, भूजल, स्रोत एवं वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई, जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता के साथ बहती है और सदियों से सूरज, वायु और धरती से आज़ादी से स्पर्श करती हुई जीव सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है वह नदी है। इसमें हमको जो की पॉइंट्स है, जो देखना है, जिसको समझना है, सबसे पहली बात है जो जल का उद्गम। अभी हम पता है कि भूजल भी है और हिमजल भी है, जहाँ से ये शुरुआत होती है अगर हम पानी की बात करें, जो उद्गम के लिए है। क्योंकि हमको नदी जब देखेंगे तो हम नदी को उद्गम से संगम तक देखेंगे, और हमको उसको क्या बनाना है, स्वयं प्रवाहित। आज जो हम लोग ये जीआर देख रहे हैं, जीआर में कहा गया है कि हमको इसको अमृत वाहिनी बनाना है, क्योंकि अभी अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है। लेकिन अमृत कैसे बनेगी वो मुझे नहीं मालूम है, कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन वाहिनी जो स्वयं प्रवाहित, ये कंसल्टेंट्स के लिए भी एक मैं चाहूँगी आप लोग ये नोट करें ज़्यादा करके, स्वयं प्रवाहित रखने के लिए। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कंसल्टेंट से, तो प्रवाहित कैसे रखेंगे, तो ट्रीटेड वाटर को छोड़ेंगे तो प्रवाहित होगी, वो वैसे प्रवाहित नहीं होती, ये समझना ज़रूरी है। जो अविरलता और निर्मलता और स्वतंत्रता, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अविरलता, निर्मलता बिल्कुल प्योरिटी से अपने आप वो बहनी चाहिए स्वतंत्रता के साथ। और जो सदियों से ये जो पंच महाभूत है उसको यहाँ मेंशन किया गया है, सूरज, वायु और धरती। इसको स्पर्श करते हुए जब ये आगे बढ़ती है तो जीव का जो सृष्टि होता है उसको पोषक बनाता है, और वो नाता जो जुड़ता है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिवर सिविलाइजेशन हैड ऑलवेज अराइज फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और जितने सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए वो इसी वजह से ही हुए जो कि उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। और आज का भी सिविलाइजेशन वैसे ही दिख रहा है। तो इसीलिए आज बहुत ही इस सिचुएशन पे हम लोग पहुँचे थे कि हमने फिर गवर्नमेंट को, जो पहली हमारी 2015-16 में जब अपने मुंगंटीवार जी फॉरेस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको हम लोगों ने बहुत कन्विंस किया था कि एक नदियों को स्वच्छ करने का कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस टाइम पर नमामि चंद्रभागा शुरू किया गया था, ये शायद आप सब जानते हैं क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में हैं। और उस टाइम पर जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो जल साक्षरता, इसीलिए जल साक्षरता सेंटर केंद्र यशदा में खोला गया, जिससे कि सारा साक्षरता, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट साक्षरता। अब ये सेकेंड फेज़ में जब वापस से मुंगंटीवार जी आए, हम लोगों का रिक्वेस्ट रहा कि हम लोगों ने साक्षरता, जन जागृति, ये सब बहुत हुआ है और वो कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है, क्राइसिस पीरियड है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली, हिंदुस्तान में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, ग्लोबली 70 से ज़्यादा % की नदियाँ सूख चुकी हैं, और जो बाकी का नदियाँ हैं वो सारे पोल्यूटेड हैं। इसका मतलब जो पानी के जो स्रोत है सारे के सारे पोल्यूटेड हैं। तो ये बहुत ही एक क्राइसिस पीरियड, उसी के चलते फिर मुंगंटीवार जी ने वापस उसको एक्सेप्ट किया, और ये 2 GR निकले, जो एक 30 सितंबर को निकला। 30 सितंबर का जो GR है, आप आगे बढ़ेंगे प्रवीण, नेक्स्ट ये ले लो, आगे ले लो। ये बोल चुकी हूँ, नेक्स्ट। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जब जल साक्षरता केंद्र बनी, अब मैं जैसे कह रही हूँ, मैं जलनायक हूँ। हम जब शुरुआत में 2016-17 में जब जलनायक थे तो सिर्फ 7 थे पूरे रीजन में, अब आप देख रहे हो 24 का आंकड़ा है। तो ऐसे करके ये एक कैडर बिल्डिंग हुई। आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत लेवल पे, तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे, विभाग लेवल पे, राज्य लेवल पे कैडर बिल्डिंग हुई, जो ये सारे लोगों को तैयार किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्कुलेट होना चाहिए हर भाग तक, कि लोगों को ये नदियों के बारे में और इससे जुड़ना चाहिए। ये हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें लोगों को जोड़ना, ये सबसे बड़ी पहली मकसद है। तो आप देख रहे हैं कि अभी आप वक्त के साथ में ये नंबर बढ़ गए हैं। इसमें जो एक जल कर्मी का है, आप साइड में जो एक आप ये देख रहे हो पिलर जैसे देख रहे हो, जल कर्मी, वो आप सब हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल जल कर्मीज।
और बाकी का जो आप देख रहे हो जल सेवक, जल दूत, जल प्रेमी, जल योद्धा, जल नायक, ये सब जो कम्युनिटी में जाकर सारा ट्रेनिंग और जागृति का काम कर रहे हैं, तो ये वो कैडर बिल्डिंग है। तो इस तरह से ये कैडर बिल्डिंग हो चुकी है। नेक्स्ट, अभी हाँ, जो पहली मैंने आपसे कहा, जो राइट हैंड साइड में आप ऊपर का जो पिक्चर देख रहे हो वो था नमामि चंद्रभागा जो शुरू हुआ था, और उसकी भी शुरुआत फडणवीस जी ने और मुनगंटीवार जी ने ही उसकी शुरुआत की थी, और वो भी नागपुर से ही शुरू हुआ था। तो इस तरह से वो नमामि चंद्रभागा शुरू हुई। उसके बाद में जो बाकी है ये हम अपना भी बता रहे हैं कि हम किस किस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि मोबिलाइजेशन करना है हमको सोसाइटी को, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर का जो पिक्चर देख रहे हो वो इस्कॉन जो गोवर्धन इको विलेज, वो एक सैंपल हमारे लिए पूरे मुंबई में एक सस्टेनेबल डेवलप्ड विलेज है, जो कि पूरा इको विलेज, पहला इको विलेज पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया भर में है, और आज उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है सभी जगह पे। मैं वहाँ पे डीन एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, उन्होंने मेरे को अप्रोच करके वहाँ पर भी हमने सारे इसी तरीके के कार्यक्रम करके आज हमको WTO अवार्ड और बहुत सारे दुनिया भर के अवार्ड मिले हैं। नीचे आप देख रहे हो वर्ल्ड वाटर काउंसिल, हम अपने कामों को यहाँ तक ही नहीं, हमने दुनिया भर में लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया का प्रॉब्लम एक और है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ वाटर, जो पानी बिक रहा है, नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी ये जो बिक रहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी इसके चलते कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, अपने थाने डिस्ट्रिक्ट में भी, मुंबई में भी कुछ ऐसे स्टेम करके एक ग्रुप है, प्राइवेट वाटर सप्लाई है, और भी दूसरे प्राइवेट वाटर सप्लाई है, और वहाँ ये देखा जाता है क्योंकि उन जो गांव में सप्लाई दे रहे हैं या सबब में दे रहे हैं, उनका कहना रहता है कि क्योंकि नल में से जब प्रेशर कम आता है तो ऐसे फिर वो स्टेम का पानी लेने लगते हैं। सब प्रेशर क्यों कम आता है, BMC को अपना चेक करना है, और पाइपलाइंस वगैरह को कैसे हम लोगों को उसको ठीक करना है, देखना है, वो भी हमको ध्यान देना है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कल रात को 2 बजे पहुंची हूं मुंबई में, मैं हैदराबाद में थी, जियो स्पेशियल वर्ल्ड का मैं कन्वेंशन अटेंड कर रही थी। अपने पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने जो पोर्टल को उन्होंने बहुत ही गति शक्ति करके एक पोर्टल है, ये आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। गति शक्ति पे उन्होंने पूरी तरह से, आज पूरा आप लोगों को सब समझना है कि हम जो काम करेंगे वो पूरा डिजिटलाइज्ड वे में, और डिजिटल हम लोग पहले सब चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे फिर करेंगे, वरना ऑलरेडी हमारे जो DPRs हैं, हमारे सिटी प्लान्स है, सब चूकने के वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से नदियों को भी एक प्रोटेक्टिव वॉल के नाम पर जो बांध दिया गया है, जो बांधा है वो भी ब्लू लाइन पे है। जब मैं कंसल्टेंट या आप लोगों से बात करती हूँ तो रेड लाइन, ब्लू लाइन, फ्लड लाइन, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ये सब जानकारी के साथ में आज हमको काम करना है। आज हम जो फ्लडिंग होती है, हम कहते हैं नाला चौक हो रहा है या ये चौक हो रहा है, क्योंकि नदियों को सिकुड़ दी गई है। जो उसका जो एक्चुअल में रिवर का लैंड है उसको पूरी तरह से हमने एनक्रोच करके, और उसको हमने ठीक तरह से बहने के लिए उतना जगह नहीं दी है। और राजेंद्र सिंह जी के अनुसार है कि जो वॉल भी बनाया गया, या हम लोगों के लिए सबसे अच्छी गाइडलाइन तो वो होगी जो NGT सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं, उसको अगर हम लोग एक बार देख लें तो समझ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को राजेंद्र सिंह जी को जब कहना है कि जो ये वॉल्स बने ऐसे बने हैं, उसको ऐसे बनाने चाहिए थे। अगर वो ऐसे बनते तो भी उसको ज़्यादा फ्लो के लिए जगह मिलता, वो जगह नहीं मिली, इसीलिए फ्लडिंग बार बार हो रही है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा, और मैं आप लोगों से ये सब चीज़ों का शेयर भी करूंगी कि कौन कौन से पोर्टल हैं। आप लोग एक DEM का है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल का जो पोर्टल है वो भी देख लीजिए। NSRC जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसका भी अपने पास में अपना गवर्नमेंट का भी खुद का MSAC का है, रिमोट सेंसिंग के इमेजेस है, इमेजेस को भी ओवरलैप करके दूसरे इमेजेस डाल के हम उसका पूरा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोग मेरे YouTube के ऊपर भी जाएंगे तो मैंने अभी जो मैंने कन्वेंशन अटेंड की है उसका सारा मैंने YouTube बना के डाल दिया है, आपको उसमें से भी बहुत सारे गाइडलाइन मिल जाएंगे। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल मैपिंग हमको करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज तक टेक्निकल वर्क कर रहे थे मगर माइनस डिजिटल मैपिंग। अब डिजिटल मैपिंग अगर करेंगे हमको एक एक कोना समझ में आएगा। और मैडम आपके लिए भी ये बता दूं कि कल ही हमको ये बातें पता चला, और आपके लिए भी फॉरेस्ट का वो दोनों YouTube के ऊपर मैंने इसलिए आज कल ही रात को डाल दिया है कि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारे को टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिल रहा है, या गवर्नमेंट जो BMC जो टैक्स कलेक्ट करती है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमको जो हमने देखा भी वहाँ पर वो एक एक जगह को जब वो पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं, वो एक्चुअल में टैक्स पेपर के ऊपर है कि इट्स अ स्मॉल हाउस मगर इट्स अ 2 फ्लोर बिल्डिंग।
मतलब ये जो चीज़ें और बहुत सारे एरियाज है जो अकाउंटेबल ही नहीं है टैक्स पेमेंट के लिए, लेकिन आप अगर वो डिजिटल पोर्टल्स को यूज़ करेंगे, मैंने डाला है वो देख लीजिए, आपको चाहिए एक्सपर्ट्स के नंबर दे दूंगी, उनको बुला के भी हम लोग समझ सकते हैं। वैसे ही फॉरेस्ट के लिए भी मैडम उसके ऊपर है, उसमें बताया गया कि फॉरेस्ट को अगर हमको एक एक जगह को कैसे मैपिंग करके उसके ऊपर क्या काम करना है वो सब। तो आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डिजिटल ये जो जियो स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिजिटल पोर्टल्स अवेलेबल है उसको अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि ये जियो स्पेशल जो है ये पूरे दुनिया भर में इसी को ही माना जाता है, उसी को फॉलो किया जा रहा है और उससे करेक्टिव मेजर्स लिया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा ये डिजिटल इसको भी बहुत अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको सारा चीज़ें सही तरीके से मिले। तो ये हो वर्ल्ड वाटर काउंसिल में भी हम लोग जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है पानी का उसको रोकने की कोशिश। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पहले ही बता दिया है कि किस तरह से क्राइसिस है और 2030 तक की क्या सिचुएशन होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रही है। ये अब चाहिए तो हम आपको ये हमारा पीपीटी भी शेयर कर देंगे, आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नीति आयोग के गाइडलाइंस, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, ये इसलिए कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, उसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन है, रिकमेंडेड है हमको क्या करना है। सो हम एक्सपर्ट नहीं हैं, जो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर पुटअप किया है, हम उसको भी थोड़ा सा देख लें तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, यस, अभी हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के ऊपर भी 12 करोड़ का एक एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लगाया है। चला जानू या नदी ला, इसको हमने बैकग्राउंड भी इसीलिए इसको इस तरह से बनाया है ताकि ये जो सारी चीज़ें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है, जो इस तरीके का एक पेनल्टी भी लगाया गया, तो ये मल्टी डायमेंशनल वर्क हो जाएगा और एक बारी में अगर प्रॉपर प्लान के साथ में हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो सारी शिकायतें हैं या उसमें जो फंड है उसको यूज़ करते हुए मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर मेरा अगर मे बी आई एम रॉन्ग but chief secretary has been asked to open an account and in that this fund will go and from there it can be used. So this is what I know about this particular जो compensation का भी लगाया है एनजीटी ने। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि जो हम लोगों को जितने भी अपने पॉलिसीज़ है उसमें भी हमको रिफाइनमेंट लाना है, अमेंडमेंट्स लाना है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके की पॉलिसीज़ चाहिए, पॉलिसीज़ बहुत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैडम वो आपके लिए है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंने आरटीआई करके भी जब निकाला बहुत कम परसेंटेज में है। पहले तो सारे गवर्नमेंटल ऑफिसेस को हमको एक ये नोटिस जाना चाहिए कि सभी लोगों ने इमीडिएटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले उसको भी मैपिंग करके फिर किस तरीके का मॉडल होना चाहिए वो फाइंड करके पहले गवर्नमेंट इसको और बाद में सारे प्राइवेट सारे बिल्डिंग सभी को ही होना चाहिए। 2003 का जीआर है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक प्रॉपरली हुई नहीं है। मेरे हिसाब से 1% ऑल्सो इट हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड और इम्प्लीमेंटेड। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट के सब बैठे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर ऑडिटिंग और बजटिंग प्रॉब्लेम म्हणजे चेन्नईमध्ये सुद्धा अनेक वर्षापासून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये मॅन्डेटरी आहे, जुन्यामध्ये करणं कठीण असते, महाग सुद्धा असते। पण तुम्ही नवीन प्रोजेक्टमध्ये का बीएमसीच्या बिल्डिंग प्लॅन अप्रुव्हलच्या स्टेजवरच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी मॅन्डेटरी का करते? त्याच्या मॅडम सांगतात 1% आता नवीन प्रोजेक्ट मागच्या 5-10 वर्षामध्ये जे झालेले आहे 2003चे जीआर आहे आयोडीमध्ये असतात ना, सारेच्या आयोडीमध्ये कंडिशन्समध्ये असतात, सगळ्यामध्ये असतात। तर ते एक मॅपिंग करून घेता येईल की नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये जाऊन इम्प्लिमेंटेशन झाला की नाही, मॉनिटरिंग इज एमपीसीबी मध्ये पण कडे जे कन्सेंटसाठी जे येतात त्याचं ज्यांना एन्व्हायरमेंट क्लिअर सांगतो 20,000 स्क्वेअर फूटची जास्त आहे त्या सगळ्यांना रेन मॅन्डेटरी आहे ते बसवतात। मला माहित आहे की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी आहे आणि ते 2003-04 पासून मॅन्डेटरी आहे, पण नवीन तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये दिला तर त्याला इम्प्लिमेंट झाला की नाही झाला हे खात्री करतात का? हे केलं तर आता मॅडम जे सांगतात 1% टच झालेला आहे का, अशी परिस्थिती होणार नाही। जे बीएमसी बिल्डिंग Why BMC buildings? मतलब the law is for private buildings also. Everyone. तुमच्याकडे फक्त तुमच्या बिल्डिंग्सचे रेकॉर्ड आहे। प्रश्न हे आहे की तुम्ही तुमच्याच बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंटने किती प्लॅन 2003 ते 22 मध्ये मंजूर केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये अटी व शर्ती टाकलेले होते, त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही झाली हेच विचारायचे। आज अहमदाबाद जाऊन बघा, सुरत जाऊन बघा, घरोघरी जरी इफ यू जस्ट गेट इट कॅप्चर्ड फ्रॉम ड्रोन और यू फ्लाय अँड यू लँड देयर, नो यू
you see a lot of buildings with solar panels. And you can see, yes, it is being implemented. तशा मुंबईमध्ये लँड करताना भासत नाही. आणि हे माझ्या एकदम फ्रँक ऑब्जेक्टिव्ह ओपिनियन म्हणून सांगते. लँडिंग करताना मी शहराला त्याच पद्धतीने बघते की जवळच्या बिल्डिंग्समध्ये वर सोलर पॅनल्स दिसतात का. अँड इन हैदराबाद यू सी इट इन अबंडन्स. If their corporation can implement, why can't our corporation implement the renewable energy measures? Is the point. Like rainwater harvesting, it rejuvenates the groundwater. Simple solutions का करता येईल? STP पण असतो. STP तो राज्य अनेक कुछ प्रश्न है, पर चलिए बेसिक चीज है. आपको आप अपनी बिल्डिंग्स में तो करोगे, प्राइवेट बिल्डिंग्स में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. किराना, गोदरेज, लोढ़ा, राहेजा, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो कर सकते हैं और वो आपसे IOD में लेते भी हैं. तर त्याच्या अंमलबजावणी केलेलं नाही का? इतकाच प्रश्न. नाही सर, पहिल्यांदा फर्स्ट कन्सेंट ऑपरेशन ते आम्ही व्हेरीफाय करतो आणि सॅम्पलिंग पण होतं STPचं आणि OWC STPचं मॅन्डेटरी आणि इट इज बिंग चेक. हां, 20,000 स्क्वेअर मीटर who required EC नॉट डायरेक्ट क्लियरेंस, ओनली दैट प्रोजेक्ट. 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. नाही मॅडम, ज्याला कन्सेंट आहे त्याला आम्ही बहुतेक मॅन्डेटरी आहे, होतं ते. होतो ना. नाही होतं शंभर. आपण फक्त चर्चा करायचं. नाही होतं आणि ते व्हेरीफाय पण करतो आम्ही. तुम्ही करता. मॅडम, आता मी आर्ट सेंटरमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी स्कूल्स आहे, हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, वेलफेअर सेंटर, त्यासाठी आम्ही गव्हर्नमेंटमधून फंड घेतलेला आहे. आणि BMC मध्ये आर्ट सेंटर उभारणे आणि आता आम्ही चालू करू 8-15 दिवसात. सेम थिंग आम्ही सोलारसाठी पण त्यांचा फंड घेतला. इव्हन सुनील राणे आपले जे आमदार आहेत आमचे कोरिटीचे, त्यांच्या मार्फत सुद्धा 3-3.5 करोडचा फंड घेतला आणि सोलार पण आम्ही हॉस्पिटल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, आपल्या ज्या डिस्पेन्सरी वगैरे जिथे जिथे आपण वापरू शकतो तिथे आम्ही घेतलेलं आहे, चालू केलेलं. Gandhi, we have worked together for a long time, and the way I took you and I have closed down many of the units also, chemical companies. Myself I went and इनके साथ में जाके हमने उसका पंचनामा करके बंद भी करवाया है और आप जानते हैं. तो मैं चाहूँगी एक जेन्युइनली आज ये GR के अंडर में हमको वो स्कोप मिला है, तो अगर जितना जेन्युइन हम काम कर सके, क्योंकि आज आप कोई भी नदी, कोई भी स्ट्रीम किधर भी चले जाइए, आज अगर आप कहते हो कि चीज़ें हैं तो फिर वो काम नहीं कर रही है या नॉट फंक्शनल या जो भी है, आपको उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करके निकालना है. एंड आप लोगों के सिवाय, MPCB के मदद के सिवाय ये कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता है. इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों को, जो हमने पहले से ही लेटर दिया है आपके RO को भी, और हम लोगों को वो जो किट्स प्रोवाइड करने के लिए वो करिए. हमको लैब टेस्टिंग का भी जो हमको प्रोविज़न मिलना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो भी हमने बहुत दिन से लिख के दिया हुआ है, वो भी अभी तक नहीं मिला है. उसको भी प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, ताकि हम लोग भी आपके साथ में मिलकर हम उसको टेस्टिंग्स करते रहेंगे, ताकि एक दूसरे के वेरिफिकेशन से, क्रॉस वेरिफिकेशन से भी चीज़ें सही हो जाएगी. तो यही एक गुजारिश है, अगर हम लोग सब करें तो बहुत अच्छा होगा. तो अभी मैं जो बता रही थी कि जो पूरा ओवरऑल जो इसका एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स जो है, उसमें जो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, SDG गोल्स, UN के जो SDG गोल्स भी हैं, उसके अंतर्गत भी जैसे अभी अभी एजुकेशन, हेल्थ अभी बात हुई, जो उसी तरह से बहुत सारे SDG गोल्स भी इसके मार्फत कंप्लाई हो जाएंगे. तो अगर हम सही मायने में अगर इसको प्रॉपरली प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये कामों को हम अंजाम दे पाएंगे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम मूव कर पाएंगे. नेक्स्ट, ये है हमारा GR. इस GR को आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, और जितने लोग यहाँ पे बैठे मुझे लगता है इसमें से 50% लोगों से हम मिल चुके हैं, बातें कर चुके हैं, GR को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसीलिए उनको मालूम है. लेकिन मैं अभी जो नए लोग और जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, ये GR एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन है, बहुत ही स्पेसिफिकेशन है. इसको अगर हम ठीक तरह से इसको अमल करें और इसके साथ चलें, मेरे ख्याल से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. अगर आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि इसका जो नदी का संवाद, हमको संवाद जोड़ना है. हम संवाद करके जो नदी के परिसर में रहने वाले लोग, उनसे जानकारी लेना है, उनसे बातचीत करना है. वो कैसे देखते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले नदियाँ कैसी थी, आज नदियाँ कैसी है, ये जब वो हमको बताएंगे और कैसे होना चाहिए चीज़ें. बहुत बारी आप लोग को बता दूं, मैं पूरे देश भर में जाती हूँ. मैं इंडियन पेनिनसुलर रिवर बेसिन काउंसिल की भी मेंबर हूँ और पहले ही बताया वर्ल्ड वाटर काउंसिल की मेंबर हूँ. इसके चलते जब हम सारे जगह का जब सर्वे करते हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है कि जब हम लोकल लोगों से
सीनियर लोगों से वहाँ के मिले हैं, हमारे साथ में IIT के इंजीनियर्स भी साथ में होते हैं। उन्होंने खुद ने भी माना है कि मैडम जो देखो हम इंजीनियरिंग का आपको बता रहे हैं, देखो ये अनपढ़ वो बता वही सेम बता रहे हैं। तो इसका मतलब है हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। उन लोगों से भी जानकारी लेके हमारे मॉडल के डिज़ाइन में हम उस तरीके का डिज़ाइनिंग करें तो भी बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा डिजिटल मैपिंग एंड सोशल मैपिंग, this is also very essential. So the objective of this particular campaign is also social mapping at more 80% we are going for social mapping, 20% technical and digital mapping, because that has already made automations have made our lives easy. There is lot of remote sensing images are there and many such digital platforms are there which is going to help us in designing our other things, but social mapping is most important. दूसरा जो दिया है जन सामान्य में नदी साक्षरता के कारण उसका उपयोग और उसके उपाय योजना भी बताना है। तो ये भी हम लोग उनके साथ जब जन जागृति करेंगे उनको भी बताना है, क्योंकि जहाँ जहाँ अभी हमने मुंबई की नदियाँ देखी है उसमें गार्बेज डंपिंग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ऑलरेडी हमने वार्ड ऑफिसर्स को लेटर भेजा है, हमने SWD डिपार्टमेंट के तरफ से लेटर भेज दिया है कि सबसे पहले मिनिमम एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि जहाँ भी आप बोलो यहाँ मत डालो, वो लोग पूछे कहाँ है बोर्ड, कौन कहता है, ये ऐसे करके होता है। तो उसके ऊपर अगर एक वार्निंग का भी हम लोग लिख दें, और क्या है ये नदी स्वच्छ रखने का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और इसमें कचरा ना करें, ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स मिनिमम बेसिक इफ़ वी स्टार्ट विथ आई थिंक दैट विल मेक अ गुड बिगिनिंग। तो वो हो जाना चाहिए और वो भी एक हमारे लिए जनजागृती का एक कदम हो जाएगा। नागरिकांच्या सहकार्याने नदीच्या अभ्यास, हमको ये अभ्यास उसका पूरा स्टडी कंडक्ट करना है। और अगर आप इसी GR को एक गाइडलाइन देखेंगे, मैं पहले बता रही थी कि 30 सितंबर का एक GR निकला था और एक 14 अक्टूबर को निकला है। ये जो मैं आपके सामने डिस्प्ले किया है ये 14 अक्टूबर का है। 30 सितंबर का जो निकला है वो स्टेट लेवल की बॉडी फॉर्म हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जी चेयरमैन है और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी, अलॉन्ग विथ हमारे जो राजेंद्र सिंह जी और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स उसके ऊपर हैं। तो इस तरह से वो 30 तारीख का निकला हुआ है। ये जो 14 अक्टूबर का GR हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज़ों को इसमें बहुत अच्छी तरह से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन, जो कि कभी किसी GR में होता नहीं है। ये GR में बिल्कुल टाइमलाइन फिक्स किया है, क्या काम कितने वक्त में करना है। तो इसीलिए उसके ही चलते आज जो हम लोग 18 अक्टूबर को सामने हम लोग हैं, ये प्रिपरेटरी फेज चल रहा है। उसके ऊपर दिया था, पहला था जो 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, जो मैडम ने, रेवती मैडम ने आपसे बताया, 2 अक्टूबर की इसकी शुरुआत हुई वर्धा में सेवाग्राम में, और फडणवीस जी, राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, मुंगंतीवार जी, राजेंद्र सिंह जी, इनके हाथ से हमको एक कलश और एक झंडा दिया गया, और उसको देकर एक सम्मान जो जलनायकों को देना चाहिए वैसे करके उसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से। 15 अक्टूबर रखा गया था अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए। ये सोचा गया था कि 15 तारीख को जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ के जो कलेक्टर्स और सभी मिलके वहाँ की जो नदियाँ आइडेंटिफाई की गई है GR में, उस पर जाकर उधर कलश पूजन या इस तरीके का कार्यक्रम करें, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि 14 अक्टूबर के रात को ये GR निकली। इसीलिए 15 अक्टूबर था सैटरडे, देन 16 वॉज संडे। सो दैट इज़ वाई वी एंश्योर्ड दैट एटलीस्ट वन डे 19 को हमने फिर कार्यक्रम किया। मॉर्निंग को था हमारा ओशिवरा, वालभट और मीठी नदी का, और शाम के वक्त में हमने रखा था पोईसर और दहीसर का। जो हम पोईसर और दहीसर का हम कर सके शाम के वक्त में, अनफॉर्चुनेटली मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी करके हमने उसको कॉल ऑफ किया, मगर मैं जानती हूँ उनके डिस्कशंस और उनके वर्चुअली हमने उनका पूरा हमने उनका उपयोग किया उस दौरान, और वो हमारे साथ में काम करती रहीं, इसीलिए हम आज एक साथ बैठे हैं और टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन, ये पीरियड जो है ये प्रिपरेटरी पीरियड है। हमको ये जो मैंने आपसे कहा कि अभी हम लोग सारा मैप्स निकालेंगे, हम डिजिटल पोर्टल से जितने भी हमको जो भी डेटास चाहिए, हमारे सारा डेटा हम निकालेंगे, उसकी एनालिसिस वगैरह कर लेंगे। तो ये हमारी प्रिपरेटरी फेज़ है जो 30 नवंबर तक चलने वाली है। तो आप लोगों के पास से हम चाहेंगे, हमको सारी जो मैप्स है, मैंने अभी बताया, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने मेजर हमने 5 नदियों की बात की है, लेकिन जब रिवर रिजुविनेशन की बात आए, एक दिमाग में डाल लें आप सभी लोग, रिवर रिजुविनेशन डजंट मीन्स ओनली रिवर क्लीनिंग एंड रिवर ब्यूटिफिकेशन, इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। 99% aspect is river basin approach of working.
वहाँ पर फॉरेस्ट भी है, वहाँ पर हमारे जितने कैचमेंट एरियाज़ है, हमारा फ्लड लाइन है, हमारे को ट्री प्लांटेशन कैसे करना है, फॉरेस्ट का जो एरिया उसमें क्या करना है, प्लस हमारे नदियाँ जहाँ से बह रही है उसके आसपास में कितने वाटर बॉडीज़ है, वेल है, बोरवेल्स है, अभी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हुई, कितना रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, किस किस माध्यम से हो रहा है, कितना इस दौरान 10 साल में हमने क्या किया उसके लिए, ये सब का हमको डेटा लगने वाला है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी बिफोर एंड आफ्टर काइंड ऑफ अ स्टडी। तो इसीलिए हमको 10 साल की एक डेटा, अगर आपको लगता है 10 साल बहुत ज़्यादा है तो 5 साल का डेटा आप निकाल के दे दीजिए, और उसके साथ में हम बिफोर एंड आफ्टर का सिनेरियो के साथ में ये स्टडी का एक कंपैरेटिव स्टडी भी हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये समझ लेना है कि अभी हमको जो रिमोट सेंसिंग के मैप्स लगने वाले हैं, GSDA के मैप्स लगने वाले हैं, हमको फ्लड लाइन मैप्स, हमको टोपो शीट्स मैडम, आई हैव बीन सो मेनी टाइम्स आस्किंग सिंस RTI में और सब कुछ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है फॉरेस्ट की तरफ से। सो वी वांट एवरीथिंग, बिकॉज टोपो शीट इज़ द शीट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट एवरी डिटेल ऑफ एवरी आस्पेक्ट ऑफ द प्लेसेस. So that is why we are insisting from every department, and my request to all of you all will be, please don't take my words anytime like, you know, very harshly you are asking or you are talking this. But the harsh, it only sounds when we are not ready to accept the things. Otherwise nobody will take these words as a harsh. It is only for the reverse that we are doing. टॉपो शीट्स आहे ना, SGMPच्याच पाहिजे देऊन टाका, आणि आपण BMC मध्ये 3ही 4ही 5ही सगळ्या नद्यांवर प्रॉपर IIT आणि नीरी आणि अन्य संस्थांकडून प्रॉपर रिसर्च करून कसे ते नदी पुनर्जीवित होईल याच्यावर आपल्याकडे खूप सारे रिपोर्ट्स आहेत. यांना अध्ययन करून शासनाकडे पाठवण्यासाठी ते रिपोर्ट्स तुम्हाला मिळेल माहिती. आणि हे जसं पर्जन्यमानची माहिती, वनक्षेत्रात काय आहे, ही सगळी माहिती अशी शासनाकडे उपलब्धच असते. BMCचा ॲक्शन प्लॅन पण आहे. नद्यांवर तुमचे ॲक्शन प्लॅन आहे ना, तर तेच ॲक्शन प्लॅन देऊन टाका ना. निरीकडून आम्ही 2021-22 मध्ये करून घेतो. बिकॉज शी नीड्स ऑल इन्फॉर्मेशन. वी आर नॉट हियर टू हाइड एनी इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट मैं मेरा जिले का जो सांख्यिकी माहिती है, जिसमें हमारे ज़िले में लोक संख्या कितनी है, हमारे ज़िले में गाँव कितने हैं, हमारे ज़िले में बाकी क्या है, वो सारा माहिती पूरी की पूरी बुकलेट अभी हमने पब्लिश किया, हम दे देंगे. आप 5-6 नदियों में BMC ने जो रिपोर्ट आई है BMC के पास, वो चाहे ITI से आई हो, किसी के पास, जो जिसको आपने शिक्का मोड़ तक कर दिया है, जिसका आपने मान्य किया है, वो दे दीजिए मैडम को. लेट हर गो थ्रू ईच ऑफ देम एज अ जलनायक, एंड देन शी विल प्रिपेयर अगली मीटिंग में कि दिस इज the report that we can forward to the state government. Because we are accountable to government. वही जब मैं टाइमलाइन में आ रही हूँ उसमें हम सबकी तरफ से एक रिपोर्ट जाने वाला है, वो मेरा रिपोर्ट नहीं होगा, हम सबका होगा. तो इसीलिए आप कोई भी बुरा ना माने जब हम कोई चीज़ आप लोगों से मांगे या कोई चीज़ का हम भी कर रहे हैं. हम किसी को वी आर नॉट पॉलिसिंग, वी आर जस्ट नकाशे अपने पास है सारे, जिले की पर्यटन स्थळ, धार्मिक स्थळ, मलजल निस्सारणाची माहिती, हे सगळे रिपोर्ट्स BMC मध्ये रेडीमेड अवेलेबल आहे. मॅडम वॉटरशेडचे मॅप्स मी देते तात्काळ. ठीक आहे, तात्काळ आजच्या आज मॅडमचा नंबर घेऊन टाका सगळ्यांनी, ईमेल. आपल्याकडे GSDA मध्ये सगळीच माहिती आहे, ते कुवे किती आहे, बोरवेल किती आहे, ती सुद्धा सगळी माहिती आहे. तो वन का मैडम खाली SGMP नहीं है, RA का सबसे बड़ा इशू है. RA के अंदर मोर देन 29 to 30 स्ट्रीम्स फ्लो एंड ऑल्सो 3 रिवर्स विच मूव्स थ्रू 3 रिवर्स विच मूव्स थ्रू RA. और उसमें सारे के सारे हजारे जी जानते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, सारे के सारे नदी, सारे के सारे ओढ़े, सारे के सारे स्ट्रीम्स गोबर के पानी से भरा हुआ है. 1976 से जब RA मिल कॉलोनी को जो वहाँ पर स्थापित किया गया, तब से लेकर आज तक वहाँ पर कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म नहीं है. अभी रिसेंटली मैंने जब वहाँ का पूरा दौरा किया, मैंने हज़ारे साहब को पत्र लिखा था, हज़ारे साहब ने CO RA को पत्र लिखा, उसके आगे मुझे पता नहीं है. मैं उनसे हमेशा फॉलोअप पूछती तो के बाद मैंने CEO RA को और वहाँ की PWD विंग को बोल दिया है कि इसको प्लीज़ एग्जामिन करें विद द MPCB. एंड आपने जो बोला था बायोगैस प्लांट कैन बी वन सॉल्यूशन, सम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कैन बी सेट अप देयर. We will fund it from DPDC, that we have already agreed, or we will send it to the environment, or we don't have dearth of fund. We only required this kind of an information कि वहाँ गोबर बह रहा है नदियों. You have informed us within this year we will get a project approved there.
Yes, thank you so much. I have already submitted the proposal to the new CEO who is just come. I have given it to him also. So let us do that also. Because that requires a lot of revival, lot of water there. क्योंकि आरे का एक जगह हम अगर ऐसे देखें मैडम, रेवती मैडम, वहाँ पर जो एरिया है फॉरेस्ट का, उसमें बहुत सारा हम रिसोर्स पिट्स भी बना सकते हैं. वही एक जगह है जहाँ पर हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का बहुत सारा मौका है. हम लोग वो करना चाहेंगे. तो उसके लिए भी थोड़ा मैपिंग करवा के ट्री प्लांटेशंस एंड बिकॉज वेन एवर आई एम आस्किंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेज दैट वी डोंट हैव एनी फॉरेस्ट लैंड. ट्री प्लांटेशन होगा कहाँ, तो वो आपको ही आइडेंटिफाई करके हमको बताना है. सो दैट ऑन द स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर ऑल्सो वी वुड लाइक टू डू अ लॉट ऑफ रिवर ट्री प्लांटेशंस. और जब अभी फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन भी निकला है वो तो हमें मालूम है कि फॉरेस्ट की है आ रही है. नहीं मैम, उसमें से ना सिर्फ 300 एकड़ हमको ट्रांसफर हुआ है. बाकी सब उनके ही पास है अभी आरे कॉलोनी के. स्ट्रीम्स तो कॉमनली स्ट्रीम्स कॉमन है. हाँ, वो बीएमसी का भी ड्यूटी है, आरे का भी ड्यूटी है, सबका है. जहाँ पे पानी बहे वो सबका जहाँ है. गोठे हैं वो तो सीईओ आरे के पास है. जहाँ गोठे हैं उसी के पास में बायोगैस प्लांट में जब तक सारे जानवर बाहर नहीं शिफ्ट कर रहे तब तक के लिए तो ट्रीट करो. और वैसे ही रिवर के और ब्यूटिफिकेशन जो ये कहते हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्यूटिफिकेशन शुड बी माइनस कॉन्क्रिटाइजेशन. डू एवरीथिंग बट डोंट डू कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. डू इट विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफाइंग विद द प्लांटेशन, ग्रीनरी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. प्लीज़ डोंट डू कॉन्क्रिटाइजेशन. और आप लोग, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर हमको भी अपने टीम में रखेंगे जब आप डिज़ाइन प्लान कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम आपको ज़रूर टाइम पे उसके लिए भी सलाह मशवरा देते रहेंगे. जो एक्सपर्ट्स को जानते हैं उनको भी हम आपके सामने ला सकेंगे और इस तरह से करेंगे. दूसरा मैडम यहाँ पर अभी रिवर बेस्ड कॉन्क्रिटायझेशन कुठेही करत नाही, फक्त क्योंकि एन्क्रोचमेंट बॉम्बे का लाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया और प्रोबेबली महाराष्ट्र, वी डोंट हैव टू थिंक कि हमें कंपाउंड बनानी पड़े या उसके एजेस पे बनाना पड़े. बट यहाँ क्या है, भरते हैं और झोपड़े खड़े हो जाते हैं, भरते हैं और झोपड़े खड़े हो जाते हैं. मोर देन द एजेंसीज, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस आर ऑल्सो कल्प्रिट, बट सिटीजन्स आर ऑल द मोर कल्प्रिट बिकॉज वो रोज अतिक्रमण होता है नदी के ऊपर. तो इसलिए उसकी कम से कम ये सीमा पे तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये लोग बेचारे दीवार बांधते हैं. एंड आई बिलीव हाईकोर्ट वगैरह के डायरेक्शंस में भी आया हुआ है कि कम से कम उसका दोनों तरफ से बांध दो, उसके आगे अतिक्रमण नहीं मान दो. लेकिन उसका भी मैडम एक पर्टिकुलर ये है. हाँ, नहीं वो पोरस की वजह से तो वो सारा कुछ ड्रेन छोड़ दे रहे हैं, फिर ड्रेनेज छोड़ रहे हैं, स्लम्स उसके बाजू में है, सारा ड्रेन का पानी ही उसमें छूट रहा है. दूसरा, जो स्ट्रक्चर जैसे होना चाहिए था वॉल का वो करेक्ट नहीं है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उसकी करेक्टिव मेजर्स लिए जाए. बीएमसी डजंट डू एनीथिंग, मतलब इवन द स्मॉलेस्ट थिंग. अगर इस कैबिन को भी मैं कहूँगी ना कि बीएमसी थोड़ा रिपेयर कर दो, तो वो बीएमसी का इंजीनियर कुछ नहीं करता, वो तुरंत एक आर्किटेक्ट कंसल्टेंट अपॉइंट करता है. ये बिल्डिंग हेरिटेज है क्या, ये बिल्डिंग 10वें फ्लोर पे है तो इसका व्यू कैसे सुंदर होता है. इट्स ऑलवेज 10 एक्सपर्ट्स इन दैट सेक्टर विच एक्चुअली फाइनली एडवाइज देम विद द डिज़ाइन. सो ऐसा नहीं है कि नदियों के जो बीएमसी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं लिया है. आई एम श्योर आपके सारे टेंडर्स में आपने IIT, नीरी और भी बेहतर एक्सपर्ट, राजेंद्र जी भी कई पैनल में थे ना आपके पास. चेक इट. आई एम ओनली टेलिंग यू दैट जो आपके पास है फैक्ट्स इनको सारा बता दीजिए. नदियों को कॉन्क्रिटाइज बेस को तो कोई नहीं कर रहा है, नीचे फाउंडेशन तो किया हुआ है, सभी जगह पे किया हुआ है. मोस्ट ऑफ बेस यस रिवर बेड्स आर कॉन्क्रिटाइज्ड. दैट्स व्हाट वी आर बेड्स का कॉन्क्रिटाइजेशन तो कहीं पे टोटल इकोलॉजिकल डैमेज. What happens, what they are thinking of, the base is like foundation of the wall. It is not the concretization within the river. Concretization of bed is not being done. It's not a part of your project, no? That's the natural. That's natural, but आपको दोनों तरफ वो दीवार तो लगानी पड़ रही है because अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है. रामू गड़े जी, आप खुद जानते हो, आपने मेरे साथ में खुद ने विजिट किया है मीठी नदी का, इसीलिए आप तो ये बात नहीं करें कि वो सही है सब चीज़ें. आपने भी हमें कहा था कि पायलट प्रोजेक्ट आप अगर कर सकते हैं हम लोग को मदद कर सकते हैं. और देखिए हम सबको एक दूसरे की मदद से करना है. रिवर बेड मैं आपको दिखा दूंगी, आज ही आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखा. हम लोगों ने मीठी रिवर के अंदर बेड के अंदर वी हैव नॉट डन द कॉन्क्रिटाइजेशन. इट इज अ नेचुरल बेड. तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो वॉल के नीचे जो फाउंडेशन होता है मैडम, वो मुझे करने के लिए जो कॉन्क्रिटाइजेशन करना पड़ता है उतना ही करते हैं. एंड एज फार एज मीठी रिवर इज कंसर्न, द रिटेनिंग वॉल डिजाइन हैज बीन गिवन बाय द IIT itself. So but and the retaining wall issue has been also discussed with the Honorable High Court in the 2006. So as per the guidelines of the Honorable High Court, we are doing the work. Just inform. They
have come into picture, they also would want to know कि आपने किस तरह से किया है. And here is 5 rivers, not only one Mithi river. We are also talking about the Walbhat river. There where we have seen. I know you are designated for Mithi. I know that. So, but the real pictures, Mr. Satpute and you have seen, observed everywhere. So you can vouch for कि cementing is not done, but all the rivers, you know, everywhere the drainage is open. So that also is a fact. So that all things like, see, we have to see the actual situation today and how much we can bring in the difference. So that is what is the our step towards. Now another is the building proposal department is here. So in building proposal also, madam, I have given some which I know I have said about those buildings which have come up without OC also to the building, but then recently we are hearing OC is also given. It has come on the blue line of the river. It is come close to the on the flood lines of the river. Most of the places it has happened. In Mumbai, have you categorized, because Mumbai is all concrete jungle only, within which some rivers try to flow, within which some trees try to grow. So, आपका river का, because I remember Sanjay Gandhi National Park पे भी the government because of some NGT order tried to say that 1 kilometer में no construction is allowed. CCs were stopped, but then the Supreme Court of India said that for Mumbai the rules are different, and Mumbai actually allowed the CCs were afterwards reissued by you. Because Supreme Court of India ने कहा कि भी rules पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे बनते हैं, but there are always exceptions. आपके यहाँ river bed, river का flood line आप कितनी दूर तक लेते हो, उसके बाद तो construction कर ही नहीं पाएंगे बॉम्बे में बहुत सारे. मैम इसके लिए there is the classical case of the Mithi, because I am only related with the Mithi river, so I can give you some enlightenment of the Mithi river. If you get into the technical part, you know the hydrological model, the flood lines we are talking of. Okay, it's a red line and it's a blue line. You know, so in the technical terms, we always follow with the hydraulic modeling. Yes. So when the CWPRS, which is the apex body in the India for the hydraulic modeling, so they did in 2006 about the hydraulic modeling. What they found, we need to have at least 40 meter of the width in the upstream of the area, including RA and everywhere. If we follow that particular thing, so obviously, you know, somewhere around 60 or 70% of the settlement already over there might have to be, you know, resettled somewhere. Yes. And so after that, you know, there was some government apex body was there, environment committee was there. So they have decided what is the most practical way to do the, you know, remove the encroachment of the river. If we look at into the Mithi river, what the madam says, we should not follow the concretization and we should not, you know, restrict the wall of the river. So that is the classical case of the Mithi itself, because earlier there was no wall along the bank of the Mithi river. So what happened, ma'am, in 2005 when that flood was happened? So the width of the wall was somewhere around, you know, at very crucial stages, it was somewhere around 20 to 30 meters. So we widened it up to 100 meters as of now. So that is, you know, it is evident also after 2005 flood. Luckily, Bombay had not seen that much crucial part. Okay. None of us are denying that BMC is trying its best. Yeah. So the problem at times also happen because a lot of people in social sector, environment sector don't understand your project fully. Yes. And overall, आपने कितनी permissions ली है, High Court से, NGT से, Supreme Court से कहाँ से permission आई है, and what can be applied in Akola cannot be applied in Mumbai. Yes, yes. What can be applied in Ara in Bihar cannot be applied in Mumbai. Yes. And that understanding, each one of us, even the people in social sector and environment sector, needs to have. Yes. Because when we affect Mumbai and its growth, we are affecting the growth of country. Yes. It's the corporate capital of our country. It's the financial, commercial capital of our country. India is not Mumbai, very correctly, but India's economic, financial sector is definitely Mumbai. And we cannot affect our city's economic growth very adversely while maintaining, while becoming overzealous for ecology. There are thousands of rivers in Maharashtra which also equally need protection and wherein the focus can be shifted. So यहाँ आप जब कहते हैं कि ब्लू लाइन में दे रहे, ब्लू लाइन में तो आप कोई परमिशन देते ही नहीं हो, बट ब्लू लाइन के बियॉन्ड आपकी परमिशंस पे आप लोगों ने चैलेंज किए होंगे ना हाई कोर्ट वगैरह में ऑर्डर्स, बिकॉज अदरवाइज बॉम्बे का काम ही नहीं होगा. Half of the BKC is in the floodline. Yes, yes. Half of the BKC. You want to stop the BKC, you can stop my office and MMRD office tomorrow. Yes. What I am telling is, I am telling only
Because if you don't have a pragmatic approach while dealing with ecological issues in Mumbai, you are affecting the very Amrit Mahotsav of this country. इस देश के खिलाफ काम करना है तब हम जरूर इस टाइप का कर सकते हैं, बट आपने परमिशन लेनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हर बार जैसे मैंने ये जैसे ही GR देखा, कलेक्टर की अध्यक्षता में काम जब करेंगे, गलती से हमने आपके 4 प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ बोल दिया, हमने आपके खिलाफ नहीं बोला है, हमने एक्चुअली इस शहर की हित के खिलाफ बोल दिया है। इस शहर के हित में BMC को किसी भी परमिशन में इतना टाइम लगता है, NGT, हाई कोर्ट, वो सारी परमिशन आने के बाद आया और हमने यहाँ कमेटी में 4 गलत बातें बोल दी आपके प्रोजेक्ट के खिलाफ और वो गलत हो जाती है। कमिश्नर नोज द complete picture of the rivers, complete picture of balance between ecology and economy that is to be maintained, not for the Mumbai alone, for the entire country. So वो बैलेंस के लिए आपने यहाँ परमिशन, मैडम ने इतना ही कहना है कि ब्लू लाइन के बाहर, ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में आप OC देते हो। OC क्यों देते हो? इसके आपके पास हर हाल में एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शनल, क्योंकि जैसे मेरे को लैंड के मामले में सरकार की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सारे GR ये कहते हैं पूरे महाराष्ट्र का अलग है और मुंबई सबर्बन सिटी के GR अलग है। वैसा का वैसा पर्यावरण के मामले में भी कुछ चीजों पे जरूर सरकार ने निर्णय लिया होगा, जैसे SGMP में लिया है, जैसे एरोली का जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसमें जो 1 किलोमीटर का CC नहीं दिया जा सकता, उस पर सुप्रीम कोर्ट से अभी जजमेंट आया है। दैट काइंड ऑफ ए बैलेंसिंग जजमेंट इफ इट एग्जिस्ट, प्लीज शेयर विद In this case, recently what the BMC has did, we have just superimposed the service road that we call it as, as well as the buffer zone of the river. Yes. So wherever we have constructed the retaining wall along the bank of the river, we have already superimposed somewhere around 6 meters of stream. So along both the banks, and that we have already sent it to through the river department. We are going to send to the DP for when it will come into the DC DP 2034. So at that time we can restrict, because madam what happens? So as of now you are not restricting and you have intimated it to the UD department. Yes, because giving your rationale for it. Yes. Just explain the rationale. Yes. That's the only. So at least the mapping, as we said about the digital mapping, you can give us a digital map report that everything is perfect, everything we are doing, that will be great. Another thing is that as I was talking about the building proposal departments, now at least after we see this GR or now when we are doing the work, at least now whichever is new is coming. See what is done, we cannot talk about it, but which is happening now, the new constructions and all, there has to be complete, we have to stop those things. That is what I believe, otherwise this will continue and then there will be no chance for rectification. Another is desalination project. BMC has approved, that is what I understand. Israeli government's some proposal had come and that Israeli project, desalination. I think that is the most, first it should be. But it is not approved. Approved. And ma'am, that is looked after by the WSP department. So I think staff is not. Just check it Convey and, or because this project has been in discussion for past 10-15 years and every time it gets dropped because it's a very expensive proposition, and as of now we don't need the saline water to be desalinated for drinking cause. Mumbai is getting adequate water. If we compare it with Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, we get more water than any of the metropolitan cities. So there is no logic. That much obviously I am okay also, even if it gets mandated that desalination is dropped right now, not the need of that. Maybe 20 years, 40 years down the line, if we don't get any water from Hadsa, Tansa, something may happen. But as of now, it's not the need of art, and I am sure BMC has not done it. बट आपने कहाँ से पता लगाया वो अगर आप बताएंगे? मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिस ग्रुप के साथ उन्होंने किया वही उसके बाद में मेरे साथ में गोवर्धन इको विलेज में ही थे, वही इजरायली ग्रुप. सो आई नो दैट एंड दैट विद दैट इजरायली ग्रुप ऑल्सो आई हैव कनेक्टेड एंड इन BMC ऑल्सो मैडम आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट एंड आई नो दैट दैट हैज बीन अप्रूव्ड. दैट्स व्हाट वाज माय इंफॉर्मेशन. बट इट इज गुड इफ इट इज नॉट डन, गुड, बट इफ इट इज बीइंग कंसीडर्ड, प्लीज डू नॉट. That is what will be the request. Yes. Because already when commissioner says that to 2050 में डूब जाने वाला है पूरा मंत्रालय और ये वो, तो हम क्यों ये सब चीज़ों को. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर मैनेजमेंट ऑफ मुंबई, इसकी ऑडिटिंग एंड बजटिंग, वो अगर हम ठीक से कर लें, रिचार्ज के लिए हम ध्यान देने लगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम सही करने लगे, मुझे नहीं लगता मुंबई को और ज़्यादा कहीं डैम भी अनाउंस करने की ज़रूरत है. जैसे कि अभी वो मुमरी डैम और कालू डैम का अभी किया, अभी मुझे नहीं लगता और एक भी डैम की ज़रूरत है. आज जिस काल में
Western countries have started decommissioning all the dams. We are still announcing new dams. We are renovating dams, and we are spending all public money. So we should think about this. Now only we require some bandharas, we require check dams, small micro dams, nothing other than that. So that should be our intention behind doing the water conservation aspect in our this GR. तो ये जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ये पूरी बताई, अतिक्रमण से लेकर मेरा सिर्फ ये मतलब बिकॉज आई एम नॉट अ मुंबईकर, but having read while working in Bombay Corporation, so are these rivers actually perennial? Historically, were these rivers perennial? Because this GR is saying that make them perennial, which means that historically and ecologically, if they are perennial, we can make them. My knowledge of UPSC के हिसाब से कहती हूँ, there are some rivers which are perennial, there are some rivers like Rajasthan, where from I come, most of my rivers are not perennial. They are seasonal. Seasonally बहती है, बंद हो जाती है, फिर मानसून में बहती है. So ये rivers के मामले में, because ये एक बहुत important element इसमें बताया जा रहा है, अमृत वाहिनी बनाना. अमृत वाहिनी है तो बनाई जा सकती है, वरना हम प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं. वो एक चीज का एलिमेंट का भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रकृति के खिलाफ काम करना नहीं है. ये सारे GR इसी चीज को सोच रख के बना रहे हैं. आप प्रकृति के खिलाफ काम करोगे तो आप सीवरेज का ट्रीटेड पानी डाल के उसको अमृत वाहिनी बनाओगे. वैसी चीज नहीं करनी चाहिए. आप उसका पूरा बेड जितना ज्यादा वाइडन कर सकते हो उतना वाइडन करके रखो. बेड कॉन्क्रीटाइज मत करो. और नदी का स्वभाव जैसा है, नदी पेरेनियल है तो पेरेनियल बहेगी, सीजनल है तो सीजनल बहनी चाहिए. वो चीज ध्यान में रखिएगा. मेरा अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स पे आप ज्यादा जानते होंगे. तो मीठी के बारे में मैम हिस्टोरिकली रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? नॉट पेरेनियल. इट्स नॉट पेरेनियल रिवर. इज दहीसर a perennial river? Oshiwara? No, all not rivers. Because we don't have मतलब उद्गम जिससे परमानेंटली नदी के लिए पानी मिलता है वो नहीं है. So with that understanding, first कि ये नदी पेरेनियल नहीं है, ये नदी सीजनल है. बट सीजनल के समय में वो कैसे, उसके बहने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें कितना सीवरेज जा रहा है. हमारा फोकस सीवरेज ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा रहा. उसमें जो प्लास्टिक ब्लॉकेज वगैरह जितना होता रहता है, उसके अतिक्रमण सबसे ज्यादा हुआ. जितना स्लम वगैरह आता है, आज अगर आप कम से कम जितनी भी सीमा निश्चित कर पाते हो ना, पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कर देते हो. उसमें कुछ आपसे इकोलॉजिकल लैप्सेस रह जाएंगे, दोज आर रेक्टिफाइबल, बट एटलीस्ट हम और अतिक्रमण नहीं होते. एक और बात बता दूं कि अगर आपके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल तो यही होगी, अगर आप पोईसर और दहीसर नदी का अगर उगम जाके देखें, वो जगह भी उधर भी आप नहीं देखोगे बहुत सारा पानी, लेकिन वो जगह ऐसा है कोर रीजन में कि वहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है. उसको इसीलिए बफर जोन में रखा हुआ है, उसको ये किया हुआ है कि वहाँ पे लोग एंट्री नहीं कर सके. आप जाके वहाँ पानी देखिए, और जब आप बाहर बस SGNP से बाहर ही निकला कि नहीं, आप देखो नदियों की क्या हालत है. तो इसीलिए ये एक चीज़ हमको बताती है कि अगर हम उसके आसपास की जगहों को भी ठीक रखें और उसको सही तरीके से हम उसका मेंटेनेंस करें तो वो पूरी साल भर बहेगी. इतना तो कैपेसिटी है हमारे विहार और तुलसी लेक में, जो कि हमारे, और पवई लेक में, जो कि हमारे मीठी नदी को सपोर्ट करती है. बिकॉज ये जो अपने दोनों लेक्स है ना, उनका डीसिल्टिंग नहीं होता है. और सालों सालों नहीं होता है. उसमें बहुत सारा फिर मिट्टी ऑब्वियसली आएगा ही, चारों तरफ से कैचमेंट से वो इकट्ठा होता जाता है. उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. बराबर. फिर बाद में नदी में वो उतना ही कम छोड़ पाते. सो आप उनकी होल्डिंग कैपेसिटी फुल BMC देखता है क्या बिहार का काम? मैडम वो एक्चुअली कंसर्न ऑफिसर्स नहीं है. आया नहीं. हां, HC और WSP डिपार्टमेंट नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे. बिकॉज ये जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लेक्स जहाँ से हमारी नदियाँ शुरू होती है, अगर वो इंक्रीज होती है प्लस आप नदी का काम जो कर रहे हो, वो दोनों साथ में अगर होगा ना, पेरेनियल तो नहीं है ये नदियाँ, बट 8 महीने 9 महीने 10 महीने जितना ज़्यादा बह सके. इस बारी मैंने बार बार उसमें बताया था कि मीठी नदी का मेंशन नहीं है, और मैंने कहा ये तो हम आप नहीं, लेटर चेंज कर देना बाद में. वो जो लेटर भी निकली है ना, मीठी को भी थोड़ा सा ऐड करना है उसमें, वो नहीं है. सो नाउ ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया. मेन तो देखा जाए नदियों का अगर इशू है तो वो अतिक्रमण, शोषण और शोषण और पोल्यूशन, ये तीनों ही है जिसको हमको समझना है और उसका पूरा अभ्यास करके ये चीज़ों को सही करना है. आगे अगर देखते हैं तो अभी अगर आप देखें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे की गई है, जो ये कमेटी की, कि कौन होगा इस कमेटी के ऊपर.
इसको बड़े ही सोच के साथ में इतने सारे डिपार्टमेंट्स, पहली बारी मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहूँगी कि पहली बारी ऐसे एक हिस्टोरिकल GR बनाया गया जहाँ सभी को अकाउंटेबिलिटी के इसमें लाया गया है कि सभी का रोल एक फिक्स किया है कि क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें भागीदार हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एजुकेशन वाले भी आ गए, हेल्थ वाले भी आ गए, वाटर डिपार्टमेंट आ गया, रेन वाटर डिपार्टमेंट आ गया, सारे आप जो नाम ले लो नदी के और जो हमारे लाइफ के लिए चाहिए सारे आ गए। लेकिन अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एजुकेशन में मैडम अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई दिख नहीं रहा है मुझे, बिकॉज NSS वॉलंटियर्स का मेजर वर्क है इसमें। और मेरे ख्याल से PG के स्टूडेंट्स के भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्न्स के प्रोजेक्ट्स, ऑन दैट ऑल्सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टडीज। सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू एंश्योर दैट मुंबई यूनिवर्सिटी हैज़ टू बी प्रेजेंट हियर, देयर NSS डायरेक्टर शुड बी हियर, वी शुड एंश्योर अबाउट दैट। एंड इवन अबाउट द एजुकेशन के जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश होगी, मैंने एजुकेशन के जो प्राइमरी और इसके क्या कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसके जो मैंने कौन है वहाँ यहाँ के एजुकेशन के हमारे पी वार्ड के उनसे और बाकी मैंने ऑफिसर से बात की थी, लेकिन अभी भी उस तरीके का हमको ठीक तरीके का रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो एक समझना है हेल्थ डिपार्टमेंट 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर स्वच्छता अभियान तुम्हाला सगळ्यांना पत्र मिळाले ना, वॉर्ड ऑफिसर्सनी बैठका घेतलेली आहे। आपण ते स्वच्छता अभियान, स्वच्छ मुंबई, माझी मुंबई, स्वच्छ मुंबई, स्वस्थ मुंबई, नाव काहीच असो, काम काय करायचे आपल्याला, ठिकठिकाणी प्रभात फेऱ्या काढायचे, प्रतियोगिता आयोजित करायचे, स्वच्छतेचे कार्यक्रम करायचे, स्वच्छता सुद्धा करून घ्यायचे, त्याच्यामध्येच नदी स्वच्छता सुद्धा विषय ठेवून आपल्याला अनेकांना तर मुलांना अजिबात माहीत सुद्धा नाही कि आपल्या शहरामध्ये इतकी नदी है। यू लुक एट एनी रिवर, इट लुक्स लाइक ए नाला, तो वो नदी तो लगती नहीं है, तो बच्चों को कैसे ख्याल आएगा कि वो नदी है। सो बच्चों को यहाँ की ओरिजिनल नदियाँ क्या थी, नदियों के किनारे कौन से गांव बसे हुए थे, इस तरह की कोई प्रतियोगिता कर सकते हो। नदी को जानो, भारत को जानो, मुंबई को जानो, नदी को जानो, ऐसी कोई प्रतियोगिता रख लीजिए। अभी 1 डिसेंबर से 31 डिसेंबर आपल्या मोहीम ऑलरेडी आहे, त्या मोहिमेमध्येच तुम्ही हे सगळे कार्यक्रम सुद्धा और एक दिन अगर आपल्याला पुढच्या 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अमृत महोत्सव नाहीतरी साजरा करायचे। आता अमृत महोत्सवचा हिस्सा करा आणि आपल्या जे स्वच्छ मुंबई अभियान आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्क्लूड करा। इन्क्लूड करा, काही ठिकाणी मॅडमला बोलवून घ्या, है ना, मॅडम सुद्धा मुलांची एज्युकेशन मधली आहे तर तुम्ही माझा जेवढा उपयोग करायचा करून, ठीक आहे ना। आणि मेन आहे की हप्त्यात एक दिवस कंपल्सरी ठेवा की जेव्हा ते जलप्रतिज्ञा घेणार प्रेयरमध्ये, तर तसं आणि एक दिवस म्हणजे त्या दिवशी म्हणजे थोडंसं काही ॲक्टिव्हिटीज व्हायलाच पाहिजे, नदी रिलेटेड, पाणी रिलेटेड, पर्यावरण रिलेटेड, असं केलं ते जास्त बरं होईल। तर ते आणि हेल्थ डिपार्टमेंट में से कौन है, हेल्थ में का वी विल रिक्वायर कंप्लीट हेल्थ रिस्क असेसमेंट, वो एरियाज़ के, उसका मतलब वाटर बोर्न डिजीज़ेस या एयरबोर्न डिजीज़ेस ये सब कितने मात्रा में बढ़े क्या है, इसका थोड़ा सा हमको एक मिलना चाहिए। साथ साथ आपके भी कुछ कैंप्स और हमारे साथ में मिलके आप लोगों को भी एक्टिविटीज़ करना है। मैं एक बात बता दूं, इसमें जो टाइमलाइन फिक्स है वो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, जैसे मैडम ने अभी बताया। मगर मेरी गुजारिश ये होगी, वो हम एक इसके तरह ना देखें कि हमारी इतनी डिग्री हो गई, ख़त्म बात, अभी चलो डिग्री मिल गया ख़त्म। लेट अस कीप इट इन कंटिन्यूटी, let us make as an habit so that this our rivers can always flow good। and then क्योंकि अभी जो GR में एक और बात लिखी है जो ऑब्जेक्टिव में ही दिया हुआ है कि नदी का हेल्थ और इंसान का हेल्थ ये रिलेटेड है, जैसी नदी की हालत दिखती है वैसी अपनी हालत है। तो ये आप सब समझ लें। अगर आप लोग को लगता भी है आप में से कोई भी कि मैं सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट हूँ और मैं योगा प्राणायाम सब कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, आप देख रहे हो आज रिसेंटली कितने लोग कम उम्र के सब हार्ट अटैक से जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक हमको एक इंडिकेशन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि कितना सिचुएशन बिगड़ता जा रहा है बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो इसीलिए चीज़ों को आप लोग बस उस दायरे में ना देखें। तो इसमें है अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि 26 डिफरेंट अधिकारी हैं, किनका क्या रोल है वो खुद से सामने, जैसे अगर आज अटेंडेंस नहीं हुआ मैडम वो भी हम रिकॉर्ड पे रख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के नहीं आए हैं। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर सपोज टू बी प्रेजेंट। तो इस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी भी इसकी मेंटेन हो जाएगी ताकि रिपोर्ट पे भी उसी तरह से रिफ्लेक्शंस आ जाएगा। अब अबाउट टाइमलाइन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एक्चुअल करंट स्टेटस स्टडी होगा। अभी जो 30 नवंबर तक, अभी आज 18 में हम खड़े हैं,
तो ये जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है अभी, इसमें आपसे जो भी डेटा मांगा जाए, जो रिपोर्ट मांगा जाए, जिस तरीके का मैप या जो भी है, और एक साथ बैठ के हम लोग एक दूसरे, दिस इज़ अ कंसल्टेटिव प्रोसेस एंड वी आर हियर टू हेल्प यू, वी वांट टू नो व्हाट यू नीड फ्रॉम अस। वो हमको ज़्यादा जानना है और उसके मुताबिक भी काम को करना है, तो इसीलिए उतना हम भी मदद कर सके वो स्कोप भी हमारे लिए दीजिए, ताकि ये जो अप टू 30th नवंबर हम ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्लान कर सकें। 1 दिसंबर टू 30 दिसंबर तक पूरा तरीके से एक स्टडी कंडक्ट होगा, और स्टडी कंडक्ट का मतलब है अगर मीठी नदी का पूरा टोटल 17 including because now it's going more as a meandering, because we see that it has been given turnings and all. So how much is the area it is covering? You are asking about catchment area? Yes. 7,500 hectares. Okay. So now depending upon how much is the catchment area, accordingly we will have to fix the number of programs that we have to do the programs in the stretch of rivers. All the 5 rivers on the stretch of it, we have to decide how many programs can be conducted, what kind of programs can be conducted. So madam, I will request that next meeting when you call, it should be that everybody is come prepared, that we want these things to be done, so that time we can finalize our programs for the rivers. So that is what is our objective today. सो इसके बाद में जो 1 से लेकर 31 दिसंबर तक करंट स्टेटस स्टडी हो जाएगा, जो भी एक्टिविटीज़ और ये सब का एक कंपाइलेशन रिपोर्ट। मैडम, हियर वन मोर रिक्वेस्ट विल बी दैट अ पर्सन शुड बी असाइंड who will be compiling all the reports, all the data compilation and all, so that proper project or proper report can be created. From your department, if we can get that kind of help. We don't have any, maybe BMC or any, maybe का forest जो, department. मेरे हिसाब से अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से ही तीनों चारों नदियाँ प्रोजेक्ट के पास ही है। मैडम, अलग-अलग डिपार्टमेंट दिखता है। But because overall AMC project looks after all the river, no? So let there be the project department of BMC can compile. आज भी reports आपके पास ही है, सारा डाटा आपके पास ही। And why I want you so that we don't go against you. You are nobody but a civic body for the improvement of the city. So and अगर कहीं कुछ गलत लगेगा वो हम पढ़ के देखेंगे, वो हम बता देंगे. Like I am absolutely 200% against a desalination. That I will say. I am also not much comfortable with the sewerage water being released in the river. So that या फिर जो आरे में गोबर जा रहा है, not okay with that. वो अगर हमें कहीं से लगेगा आपकी रिपोर्ट्स में कुछ गलत है, वो हम उतना सा रेक्टिफिकेशन करेंगे. But we don't want your projects to be hampered because of us. So आप ही बनाइए, आप इन पे आपको क्या चॉकआउट करके दे सकते हो, ये नदियों का स्टेटस है, ये नदी का हिस्ट्री है, आपके पास सारा डाटा है. आज आपने ये किया है, 2005 के बाद ये डायरेक्शंस आए थे, मीठी पे ये चल रहा है, दहीसर पे ये चल रहा है, उशीवारा पे ये है, वानखंड पे ये है, सारी चीज़ों का, और वो दे दीजिए हमें पूरा बना के. क्योंकि एक रिवर रिजुविनेशन वाले यहाँ बैठे हैं जो 4 नदियों के, और एक वहाँ बैठे हैं मिट्टी के. हाँ. वो कहते हैं कि उनके इसमें STP इंक्लूडेड नहीं है, और इनके इसमें सिर्फ STP का ही मॉडल है, और अभी तक कोई भी नदी के ऊपर STP नहीं है. ये है सिचुएशन. नहीं है. अपने ओशीवरा, वालभट, ओइसर इसमें किया है ना, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं है. देखिए मैडम, मैं आपको उसमें थोड़ा सा एनलाइटमेंट कर देता हूँ. एक्चुअली कैसा है, मीठी का है ना, ये 3rd फेज चालू है कंसल्टेंसी का. द फर्स्ट फेज वाज रिलेटेड विद द फ्लडिंग, so 2005 में स्टार्ट हुआ था. दैट हैज बीन डन. इन 2017 वी हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड फिशमैन प्रभु एज अ कंसल्टेंट to prepare the DPR for the pollution control of the river. So in that we have already invited. हाँ, तो उसमें 4 पैकेज थे. उसमें से एक पैकेज में मैडम STP था, जो अपर स्ट्रीम में पहुई में, जो अनसीवर्ड पोर्शन था. That STP is already commissioned. अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने में उसका इनॉपरेशन भी हो गया. वो भी यही रखिए, मैडम को भी बुलाइए. हाँ, मैं देता हूँ रिपोर्ट्स वगैरह. वो अपना एक कार्यक्रम रखिए कि मीठी रिवर पे जो पोवई से जहाँ से वो शुरुआत होती है, वहाँ पे सीवरेज जो जाता था उसका STP का कमिश्निंग किया जाए. फेज 2 का पार्ट था ये. हाँ. एंड व्हाट अबाउट द अदर फेजेस? देन उसके बाद मैडम जो बाकी का जो पोर्शन था रिवर का, उसको और 3 पैकेजेस में डिवाइड किया था उन्होंने. उसमें से जो सेकंड पैकेज था, दैट वी आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, मैडम ने भी देखा है. सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग मैम, वो समवेयर अराउंड 11 किलोमीटर का पोर्शन है अप टू CST ब्रिज. सो उसमें क्या है कि वो मेनली मैडम पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, आरे और पूरा एनक्रोच एरिया है.
और वहीं पे रिवर का वाइडिंग भी बाकी है। देन वहीं पे हम लोग पूरा इंटरसेप्शन करके पूरा का पूरा जो सीवरेज का जो भी आउटफॉल्स आ रहे हैं जो रिवर पे डायरेक्टली आ रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं मैडम, हम लोग इंटरसेप्टर्स करके बाय लेइंग द सीवर लाइन्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, वी आर डाइवर्टिंग दैट इनटू द मेन सीवर लाइन व्हिच इज ऑलरेडी द कैपिटल एमसीजेएम इज हैविंग, और उसको फिर अल्टीमेटली एसटीपीज में डाइवर्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग का बड़े एसटीपीज है जो अभी ऑलरेडी बीएमसी ने लिया हुआ है हाथ में काम। तो बेसिकली उसमें वो प्रोग्राम है। और जो थर्ड फेज है दैट इज एंटायरली फ्रॉम द एमएमआरडीए पोर्शन जो सीएससी ब्रिज से स्टार्ट होता है अप टू माहिम कॉजवे, तो उधर भी मैडम 37 आउटफॉल्स है डिफरेंट, तो उसको भी हम लोग इंटरसेप्ट करके हम लोग डाइवर्ट करने वाले हैं। उसका भी टेंडर ऑलरेडी इनवाइट कर दिया बीएमसी ने। और जो फोर्थ पैकेज था तो उसमें मैडम कैसा है कि जो सफेद पुल नाला है और बापट नाला है, दोज आर कमिंग नियर टू द एयरपोर्ट T2 टर्मिनल, तो वहाँ पे क्या है उसका जो डिस्चार्ज है वेस्ट वाटर का दैट वाज सो हाई कि वो एग्जिस्टिंग सीवर लाइन में हम लोग नहीं ले पा रहे थे। तो इसके लिए कंसल्टेंट है उसके लिए डेडिकेटेड अलग से सीवर लाइन माइक्रो टनल से हम लोग जो धारावी का एसटीपी है वहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं। दैट वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो वैसे करके मैडम पोल्यूशन कंट्रोल इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय द बीएमसी for the entire And in all the 4 phases, you have the sewage treatment. You don't have to set up multiple sewage Yes, treatment that is plants. not possible. You are, that's not possible in Bombay because land is the yes. the most difficult commodity to get in Mumbai. Yes. आप जहाँ कहीं आपकी मेन सीवरेज लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, Yes. उसको इंटरसेप्ट करते हो, उसको कनेक्ट करने का Yes. आपका पूरे Yes, प्रोजेक्ट yes, it's already planned. That is exactly what is Yes. being asked by them. We Yes. have it. Only thing, Ramu Gadeji, I would like to know that how much MLD of this waste is produced and how much is being treated today. Because if it is in portion we do, that means we are continuously polluting the river. Yes. So as much delay in this, that is also a matter of Yeah. concern. So may I know that how much is produced and how much STP is there? अभी मैडम कैसा है कि जो STPs है अभी मीठी का जो टोटल सेट है, आउट ऑफ दैट जो 150 ml की जो डिस्चार्ज है दैट इज कमिंग फ्रॉम द टू द मेन सीवर लाइंस व्हिच आर नियर टू द एयरपोर्ट, तो वो 150 का टनल का कंस्ट्रक्शन चालू है। आई थिंक इट विल टेक सम अराउंड 3 to 4 years to learn. If your consultant tells you 150 mld is the discharge, you will prepare the project as per 150 mld only. No, you are नहीं, going but, to धारावी का ensure that it will be treated. All yes, everything. क्योंकि तो धारावी का है मैम वो 450 ml का ऑलरेडी MSDP डिपार्टमेंट ने टेंडर्स निकाला हुआ है बिकॉज कैसा बीएमसी you will link it to Dharavi. हाँ, that is connected to the Dharavi. So all the sewer which is coming in, which will be generated, which is now discharging into the river, will be taken care by the STPs. तो वैसा को और उसमें ऑलरेडी उनका कैपेसिटी इंक्लूड किया हुआ है। Only thing is that मैम कैसा होता है कि पहले सीवर लेक होगा, then interception होगा, then it will connected to the STP and then It it will will get take time. Yes, But it will take what is the timeline? 3 साल में कंप्लीट होगा, 2025 में हो We are जाएगा. expecting मैम कि next 3 to 4 years में तो प्रोजेक्ट 2026 दिली होगी. Phase 4 भी कंप्लीट होगा. Yes, 2026 पर्यंत म्हणजे एमपीसी बिल देताना तरी कॉर्पोरेशन 2026 पण प्रयत्न हेच करा. 2000 तशा आझादीचे अमृत महोत्सव नंतर गणतंत्राचे अमृत महोत्सव 2050 मध्ये आहे ना. संविधानाचे अमृत महोत्सव 2023 मध्ये, 2024 मध्ये गणतंत्राच्या आणि 2026 मध्ये खरा लोकतंत्राचा, कारण पहिला निवडणूक पाच वेळ झाला होता. तर असे अनेक अमृत महोत्सव अद्याप आपल्या समोर आहेत. तर कोणत्या तरी चांगला दिवस ठरवून घ्या. या दिवशी मीटिंगच्या आमचं सगळं काम होऊन जातं. काहीतरी कमी राहणार नक्कीच, मॅडमला वाटतील नाही अजून चांगलं असलं पाहिजे, पण तुमच्या ॲटलिस्ट जे पूर्वीचे कमिटमेंट आहे बीएमसीच्या, जे अनेक ठिकाणी मान्य झालेलं आहे, अनेक ठिकाणी प्रोसेस होऊन खूप काही कन्सल्टेशन होऊन तुमच्या प्रोजेक्ट शेवटच्या टप्प्यावर आले, ते पूर्ण करून द्या. मॅडम आता मी तुम्हाला एक जस्ट क्लासिकल एक्झाम्पल देतो. पॅकेज 2 जो आमचा आहे, जो मॅडमने ऑलरेडी एकदमदा व्हिजिट पण केला आहे, त्याच्यामध्ये मॅडम प्रॉब्लेम सगळ्यात काय माहिती आहे का की वी हॅव ओनली हायलाइटेड 2 issues like encroachment and other issues. But you know the major problem what BMC is facing is the acquisition of the land. That is the major crucial part, because you know most of the properties are not belongs to the BMC. Even if the properties are belongs to the government, like central government and state government, that is again the I know problem. that citizens never So get to I know will how make it's I will working. make आता that मॅडम easy. एअरपोर्ट आहे, Ramu Gadeji, एअरपोर्टच्या इथे just मॅडम मला सीवर लाईन टाकायची Ramu आहे around Gadeji, 700 meter. we I'm will- not able to lay the sewer line. I'm following for the 2 years. But since I'm till today I'm not getting That's the only reason I wanted this committee with commissioner. If commissioner tells collector, if commissioner tells Airport Authority of India, at least commissioner will get to hear from you. Instead of collector hearing from you, commissioner would get to hear from you on every project why it is getting delayed, and the Airport Authority of India can be called in, can be questioned,
and Commissioner has a lot of meeting with Central Government of India also, so वो raise कर सकते हैं. Madam, I would I will request also humbly. try. मेरे साथ भी Airport Authority of India की कई committees हैं. I'll try to ask them कि why are they not giving the NOC to you for the work. I would like to humbly suggest something here, madam. Because Rajendra Singh ji says you go across India, you will not find a single STP giving you a proper result. And STP is not a solution to such kind of a pollution of drainage. It is by bioremediation, which we are doing. And that's why I was asking MPCB also to give us help, because I have already put up setups in my house where we have put all the water we have collected and we have put bioenzymes in that. And it's showing very good result and the cheapest of the solution which is available. And another important thing, that we don't require so many STPs. If we can go for SBTs, soil biotechnology, where it is a very big place where lot of drainage come, there STP is Mumbai okay. and Alwar, where I have all the respect for the work that has been done in Rajasthan, because I come from that place. नदियाँ मैंने देखी नहीं थी जिंदगी में, आज भी नहीं देखी है कभी राजस्थान में. जो पुनर्जीवित हुई है, राजस्थान के जिन गाँव में पुनर्जीवित हुई है, वहाँ का वेस्ट जनरेशन और मुंबई के वेस्ट जनरेशन, पूरा राजस्थान उतना वेस्ट जनरेट नहीं करता, पूरा राजस्थान जितना मुंबई अकेला करता है. और फिर मुंबई की नदियों के जो वेस्ट का ट्रीटमेंट है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा? वी नीड टू एप्रिशिएट द डिफरेंस. I understand bioremediation can work in your home or probably my farm in Rajasthan, but it will never work probably in a city जहाँ की नदियाँ आज से नहीं है, पिछले 3000 सालों से शायद बह रही है, लेकिन लगभग 300-400 सालों से तो उसमें मीलों का पानी गया है, उसमें क्या क्या नहीं गया है, लोगों ने अपना सारा कचरा डाला है. तो उनको ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से let us leave it to them and let them just complete it. Once they complete their project, after that if it is not happening, then we can Yes, provide some other my solution. intervention, madam, here, you just said that Rajendra Singh ji did it in Rajasthan or I did it at home. It's not that. We have put it in the cities, different cities we have done No it. city, मतलब I have lived in Chennai, I have lived in Kolkata, I have lived in Delhi, I will and share after that I'm with you. here. I will share with you that we have done certain productive work, which I will share with you that is showing result. That is why I dare to mention this here. Otherwise, I know they are more very. इनका प्रोजेक्ट अभी फाइनल स्टेज पे है. That is okay. इसमें किसी तरह का इंटरवेंशन ना करें, हम लोग एज ए सिटीजन ना करें, नॉट एज ए कलेक्टर. आई एम सेइंग फॉर एज ए सिटीजन ऑफ मुंबई, wherein their project is at a very advanced stage. Let it be completed first. And after that we can think of, जब हमारे पास lakes बहुत सारी पड़ी है, Malad has got 27 we will lakes. take up that. We are not saying about here. That's what I said. When it is a major issue, there we can think of STP. But there are lakes and other things. There we can Then do we with can this. think of Yes. So alternatives. this is my Alternatives. suggestion. Is see, ultimately these lakes are the support system to these rivers. So that is why I am trying to put it that if we can try on that level, so that further flow can be also corrected, because that bioenzyme will be carrying forward in the rivers and this will be bringing into the river bodies. So that is what is my suggestion here. So we should be thinking of the alternatives also, and which has actually produced the results. Yesterday only I was in Hussain Sagar and the what is that, Usman Sagar. So there also we are doing with the remediation of bioremediation. They have invited us. So from that point of view, I am trying to say that when the main source of these rivers are the lakes we are seeing. So if we can make the corrective measures It can from be done in there. Bihar, it can be done in Tulsi. So we can It try, flows we can through try. human Yeah. population. Yeah. Human population का जो So- इतना waste generate होता है, उसमें So their interception, their interception they are doing. Yes. To the technicians. Yes. So this is what is the little bit suggestions which we were giving. So 1st December to 31st December we are going to conduct a current status study. Then from 1st January to 26th, and that is also given the responsibility to the collector to ensure, or the chairman I must say, to ensure that this compilation is done timely and it is put to the committee then. And that is on 26th of Jan then there will be a felicitation program for the same, where whatever we are going to recommend in our this report, so further for the next phase, those recommendations should be implemented. For that phase will go on up to August 2023. So this is the timeline which is fixed for our complete campaign.
to ensure that in this timeline what all we can do, how we connect with each other. This is the integrated approach with which government has today given us a solution. That's why all different departments are here. It is everybody's responsibility, so we cannot just point out to BMC has not done this or that. So every one of us take the responsibility together, we come together and perform so that all work can be done very well. Next is in this regarding from where we are going to get the fund. There is work which is required. We require a lot of banners. We have to move from one place to other. There will be all food and beverages kharcha. There will be also some corrective measures, small which we have to do. As we said that wherever we go little bit, we will be doing the bioremediation things. At the same time, we want MPCP to be with us for conducting the on-spot studies or testing of the samples like probes and sensors. If they can be also provided, multi-probe sensors are available. So all these things if we are supported with, it is facilitated with these kind of services, it will be very helpful. So on this, madam, I would like you to speak on this, and then before I give it over to madam to talk about the funds, one more important aspect of this complete campaign is promotion and doing a lot of promotions and media coverage as well as social media coverage. So I want BMC's PR office, if they can be given this responsibility, every day wise there should be some news in newspaper, the before and after both, so that lot of people come to know that there is such kind of a campaign which is going on, and on different rivers, and all these have to be having a complete coverage up to 30th of November also, and continuously till the time this is coming to an end. So daily basis one news should be appearing what is exactly happening on daily basis. So that is also one request which is very essential at this stage. So thank you very much, madam. You have given so elaborate a hearing to us, and this was required, and without you I don't think this would have been this much way discussed, and we would have kept all points here very well. So very interactive it was. Thank you so much. We have some more जल प्रहरीज हो, तो हम उनसे भी सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। और जल प्रहरी भी आए हैं, yes, तीन है, आप तीनों से भी सुनना चाहूँगी। बिकॉज क्या है कि कई बार मेरा अनुभव 10 सालों का तो महाराष्ट्र का है, और उससे पहले 10 साल मैंने अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया है और पूरे देश के 4 महानगरों में काम करके आई हूँ। उसके बाद कई बार ये लगता है कि हम एक पेड़ बचाने जाते हैं, जंगल को आग लगाते हैं। वैसा एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड द बैलेंस। हम एक चीज का विरोध करने जाते हैं और मेट्रो रुक जाती है जो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट अल्टीमेटली शहर में कम करने वाली है, या हम बुलेट को रोक देते हैं और अल्टीमेटली अहमदाबाद और मुंबई ये दोनों अगर प्रोग्रेस करते हैं तो पूरे देश का भला होता है, देश का भला होता है, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर सबसे बड़ा एक एनवायरमेंटल don't quote me, don't record me also, environmental damage जरूरी है, नदियों का साफ होना जरूरी है, शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना जरूरी है। और हम कई बार एक्टिविज्म में, मैं तो खुद ऑलमोस्ट एक्टिविस्ट हूँ बावजूद इसकी मुझे भी अब जाके समझ में आने लगा है कि हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हमें जो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध बता के गए 3500 साल पहले, कई सालों पहले, 2600 साल पहले, वो मध्यम मार्ग भूल जाता है। तो मध्यम मार्ग कैसे रखें हम, जब ये इस पूरे जीआर में भी हम आपके साथ आएंगे लेकिन चलेंगे मध्यम मार्ग पे, ये समझेंगे कि सरकार की प्रोजेक्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, बीएमसी के हों, एमएमआरडीए के हों, बहुत ज़्यादा लंबे कंसल्टेशन के बाद उनको अप्रूवल मिलती है, उनको भी पूरा होने दीजिए। पूरा होने से पहले ही हम बीच में आ जाते हैं कई बार, कभी हाईकोर्ट आ जाती है, कभी एनजीटी आ जाता है, और उससे शहर का सबसे बड़ा नुकसान होता है, आम आदमी का सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो वो एक अप्रोच अगर हम रख के चलेंगे ना, तो फिर वो एनजीओ से बड़ा बेहतर सॉल्यूशन कुछ नहीं। Who is आप ओशिवारा नदी के बारे में बोल रहे थे। मैं पार्ट ऑफ रिवर मार्च हूँ। सिटीजन मूवमेंट स्टार्टेड अबाउट 13 years back. Started as a no plastic in the national पार्क में काफ़ी लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो जो ग्रुप हमारा जा रहा था, we found a deer dead in the national park. That was taken to the veterinary doctor. When the stomach was open, it was full of plastic. So we started a no plastic movement inside the national park. At present, people be aware, no plastic is allowed inside national park. Yes, very good. Then we started a movement. We started cycles. Yeah.
Yes. So now cycles are there in the national park for people to go. Yes. Then we saw that a lot of vehicle movement is also there in the national park. Then again we approached the National Park Authority and now the car park which has been made there. Yes. In fact, we funded them for electronic vehicles. They have not procured yet. Yeah. I gave them Oh, fund last is it? year. Okay. कि सारे व्हीकल अपने इलेक्ट्रॉनिक मैं इस बार ही बोल रही थी कि क्यों नहीं है हाँ इलेक्ट्रॉनिक हाँ। सफारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए Thereafter we saw the condition of you saw the condition of rivers inside the national park very good. Yes. As soon as it comes out, it's bad just outside the national park there is a Dhobi Ghat. Then thereafter there is the Tabela. So we initially concentrated on these two places. yes So we got up to Tabela people. They are putting all the gobar inside. I know that's a big issue Injections we they need used to to resolve inside. it They used to put the dead cows inside the river also. So we had a lot of even the BMC people, we confronted them also, but some of that thing is still not been solved. But where Dhobi Ghat is concerned, we convinced them to make a STP there. So now there is proper STP on the Dhobi Ghat. So no water. आपण ते महालक्ष्मीच्या धोबी घाटवर सुद्धा केलेली आहे नहीं STP is not giving the results महालक्ष्मीच्या धोबी घाटवर पण इथे ओशीवारामध्ये चांगला केला त्यांनी Oshivaram, नाही वेल यू आर सेइंग द धोबी घाट yeah, that is in Dahisar. that is in Dahisar river yeah It is giving results very That is working. very Then we been carrying out basically cleaning of the rivers. Every Sunday we used to go to the various basically Dahisar, Sulsar and Oshivara river yes and create awareness among the slums which are slum there. dwellers that is most We had important the children also coming, doing Yes. the cleaning with us. yes But somehow still, though we managed to clean a lot, we brought out lot of BMC is also there in order and everything. But somehow it hasn't percolated down to the people.